مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے آئین کے دائرے میں رہ کر فوج سے بات ہو سکتی ہے، ادارے کے خلاف نہیں، مگر آگے بڑھنا ہے تو حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے ارد گرد موجود بہت سے لوگوں سے بات چیت کے لیے رابطے کیے گئے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا موقف ہے جو میاں صاحب نے واضح کر دیا ہے۔ جج ارشد ملک ویڈیو کیس، ناصر بٹ اور میاں سلیم رضا کا نام مطلوب خطرناک دہشت گردوں کی فہرست میں شامل۔ ایف آئی اے کی دستاویزات کے مطابق ناصر بٹ اور میاں سلیم رضا پر بلیک میلنگ کا الزام ہے۔ دونوں پر ایف آئی اے کی دہشت گردی کی دفعات لگانے کی درخواست اے ٹی سی خارج کر چکی ہے۔ بانی ایم کیو ایم کا نام بھی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل۔ بانی ایم کیو ایم پر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا الزام ہے۔ ایف آئی اے کی انسداد دہشت گردی ونگ کی مرتب کی گئی فہرست میں 1210 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی تفصیلات شامل۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین اور شریف فیملی کی شوگر ملز کے خلاف ایف آئی اے کی جے آئی ٹی کو کل عدم قرار دے دیا۔ جہانگیر ترین اور شریف خاندان کی شوگر ملز کو ایس سی سی پی کی جانب سے جاری نوٹس بھی کل عدم۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ جہانگیر ترین اور شریف فیملی کی شوگر ملز نے ایف آئی اے انکوائری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کا ایل این جی ریفرنس میں 16 نومبر کو ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ان کے بیٹے عبداللہ خاقان، مفتاح اسماعیل سمیت دیگر ملزمان کو پیش ہونے کی ہدایت۔ کراچی میں موجود ملزمان پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ، ایک دن میں مزید 1800 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ کورونا سے مزید 34 افراد انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 7055 ہو گئی۔ پنجاب کے ضلع لیہ میں کورونا کیس آنے پر مزید 3 اسکول 10 روز کے لیے بند۔ کورونا کیسز کے باعث سرگودا کا ایک اسکول بھی 3 روز کے لیے بند۔ این سی او سی کی ملک میں حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے اور پابندیاں بڑھانے کی سفارش۔ تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں وقت سے پہلے اور زیادہ کیے جانے کی تجویز۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں جب اپوزیشن کے جلسے کی تاریخ قریب آتی ہے تو حکومت کورونا سے ڈرانے لگتی ہے۔ اجتماعات کھلے مقامات پر ہوتے ہیں، حکومت خود بھی جلسے کر رہی ہے۔ صورتحال اتنی سنگین ہوتی تو حکومت خود بھی اجتناب کرتی۔ پی ٹی آئی کے رہنما صداقت علی عباسی کا کہنا ہے این سی او سی کی سفارش پر ان تمام سرگرمیوں پر پابندی ہوگی جس سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہوگا۔ یہ پابندیاں سب کے لیے ہوں گی۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل میں 3 روز باقی، انتخابی مہم کل رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج گلگت، شیلا رضا اور نیر بخاری اسکردو میں خطاب کریں گے۔ وفاقی وزراء مراد سعید اور علی امین گنڈا پور اسکردو میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی ڈیوٹی کے لیے پنجاب سے 3000، خیبر پختونخوا سے 2000، سندھ سے 500 اور بلوچستان سے 200 اہلکار طلب۔ رینجرز کے 1700 اور ایف سی کے 1100 اہلکار بھی پولیس کی مدد کریں گے۔
बल्तिस्तान की आवाम इंतखाबात में वोट डालने के लिए तैयार। गैलप पाकिस्तान और पर्स कंसल्टेंट सर्वेज में राय का इजहार कर दिया। गैलप सर्वे में हर 10 में से 9 यानी 92% अफराद ने वोट डालने का कहा। 3% ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। पर्स सर्वे में 89% ने कहा कि वो वोट डालेंगे। 2% ने वोट ना डालने का कहा। गैलप सर्वे में 60% अफराद को इंतखाबात शफाफ होने की उम्मीद। 12% ने धांधली के खदशात जाहिर कर दिए। पर्स सर्वे में 29% अफराद ने कहा कि इंतखाबात शफाफ होंगे। 20% ने धांधली के खदशात जाहिर किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बिलावल मरियम मुलाकात जीबी इंतखाबात में दोनों जमातों की शिकस्त का पता दे रही है। ये धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करेंगे। ऐसी मुलाकातें पीडीएम के तारीख मुस्तकबिल को रोशन नहीं बना सकती। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, तमाम सर्वे वाज़े कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान को वोट देने जा रहे हैं। पीटीआई बड़ी लीड से जीत रही है। मरियम सफदर और बिलावल जरदारी ने यकीनी हार नजर आने पर धांधली के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। हाफिज हुसैन अहमद को JUIFA के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह असलम गौरी को जमीयत के कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। JUI जराये के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद को PDM के बयानिए पर तनकीद पर पार्टी ओहदे से हटाया गया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात में नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी और वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान उलझ पड़ी। पूरे प्रोग्राम के दौरान एक दूसरे की बात न सुनी। झगड़े के दौरान ही प्रोग्राम खत्म करना पड़ा। दोनों की बहस प्रोग्राम के बाद भी जारी रही। नाअहली केस में विफाकी वजीर फैसल वाबजा ने अपना वकील तब्दील कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए वकील की मोहलत की सदा मंजूर। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा, ये तारीखी हरबे और ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ना हो कि अगली समात पर कोई और नया वकील आ जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि किसी को डीसीट करने का मामला है। अगर फैसल वाबजा अमरीकी शहरी नहीं थे तो कोई मसला ही नहीं। मजीद समात 15 दिसंबर तक मुलतवी। माकी से मुतालिक हुकूमत का दोहरा मयार क्यों है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वजाहत पेश करने का हुक्म। कोरोना के बाद शादी हॉल्स पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समात। NCOC का मजाज ऑफिसर 18 नवंबर को जाती हैसियत में तलब। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत से पूछ लेते हैं कि माकीस के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। हुकूमत ने उधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कश्मीर कॉज और कश्मीरियों के लिए भरपूर हिमायत के अज़्म का अयादा किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, हुकूमत सोशल मीडिया पर तो मौजूद है लेकिन जमीन पर नहीं। 35 रोज में महंगाई का नया तूफान आया। चिकन की कीमत 29%, टमाटर 34% और आलू की कीमत में 8% इजाफा हुआ। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उनकी बात इमरान खान नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से कामयाबी तीर की होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ 35 लाख रुपए से ज्यादा असासों के मालिक। उनके पास 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 2 गाड़ियां हैं। उन्हें वालिदा की तरफ से 100 तोला सोना तोहफा मिला। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर 39 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों की मालिक। 980 ग्राम सोने के जेवरात, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 3 गाड़ियां हैं। नासिर हुसैन शाह 13 करोड़, सुहेल अनवर सियाल 9 करोड़, PTI के फिरदौस शमीम नकवी 33 करोड़, हलीम आदिल शेख 2 करोड़ से ज्यादा असासों के मालिक।
इलेक्शन कमीशन ने अरकान सिंध असम्बली के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। आरजू राजा केस में कराची की मकामी अदालत का आरजू के मुबैना शौहर अली अजहर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया आरजू का निकाह पढ़ाने वाले निकाह खां अबूरी जमानत पर हैं। आरजू के वकील की तलाश में छापे मारे लेकिन वो मफरूर है। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को 14 दिन में चालान जमा कराने का हुक्म। पेशावर की इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में हरासानी के वाकयात के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मामले का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्शन टीम को 3 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। तालिबात ने गुज़श्ता रोज के एहतजाज में इल्जाम आयद किया था कि उन्हें प्रैक्टिकल्स और इम्तिहानात के बहाने इंतजामिया और मर्द असातिज़ा की जानिब से हरासा किया जा रहा है। थरपारकर में 21 साल की लड़की की दरख्त से लटकी लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि लड़की ससुराल वालों से नाराज थी। दरख्त से लटक कर मुबैना खुदकुशी की। लाश का पोस्टमार्टम हो गया, तफ्तीश जारी। थरपारकर में रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 106 हो गई। वजीर आजम आज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं इन सर्टिफिकेट्स में डॉलर पर 7 और पाकिस्तानी रुपए पर 11% मुनाफा दिया जाएगा। 3 माह से 5 साल की मुद्दत के सर्टिफिकेट से मुकर्ररा मुद्दत से कबल भी सरमाया निकलवाया जा सकेगा। सिर्फ खालिस मुनाफे पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। बैरून मुल्क असासे जाहिर करने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। वर्कर्स तरसीलात ज़र मुसलसल 5वें महीने 2 अरब डॉलर से जायद रही। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में तरसीलात ज़र का हुजूम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में 14% जायद है। अक्टूबर में 30% तरसीलात सऊदी अरब से मौसूल हुई। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कोस्टल एरियाज में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा। गवादर, तुरबत और ओडमारा में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। नेवल चीफ का कहना था कि सीपेक से वाबस्ता तरक्की में मैरी टाइम सिक्योरिटी कलीदी किरदार की हामिल है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का इलाज जारी। डॉक्टर मोहम्मद अमजद कहते हैं अस्पताल में 1-2 दिन मजीद रखने से चौधरी शुजात की सेहत मजीद बेहतर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात का सिलसिला जारी। 234 सफहात पर मुश्तमिल दस्तावेज में बैलेट पेपर जमा करते अमले की वीडियो शेयर करके गिनती के अमल पर सवाल उठा दिया। कहा ये लोग बैलेट पेपर जमा कर रहे हैं। लॉस एंजलिस काउंटी हुकाम ने वायरल वीडियो में 3 नवंबर के बाद भी वोट डाले जाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा वीडियो 4 नवंबर की है जब वोट जमा किए जा रहे थे। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के मजीद 1,42,000 से ज्यादा मरीजों का इजाफा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने पर मकामी हुकूमतों पर फौरी नई पाबंदियां लगाने के लिए दबाव। न्यूयॉर्क में बार्स, रेस्टोरेंट्स और जिम रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म। घरों में होने वाली तकारीब में 10 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी। टेक्सास में जगह कम पड़ने पर 2 अस्पतालों के बाहर मोबाइल मेडिकल टेंट। ईरान में एक दिन में कोरोना से मजीद 462 अमवात। मजीद 11,780 अफराद में कोरोना की तस्दीक। भारत में कोरोना से मजीद 48,000 अफराद बीमार, 550 अमवात। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि ऐसे मंसूबों पर काम हो रहा है जिनसे कोरोना के दौरान हज और उम्रा को महफूज बनाया जा सके। कोरोना के बायस मईशत पर पड़ने वाले असरात से निपटने के लिए मुमलिकत की जानिब से बरवक्त इकदाम किए गए हैं। फिलिपाइन के जनूबी इलाकों में समंदरी तूफान वेमको से तबाही। तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से 40,000 से ज्यादा मकानात डूब गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स हलाक, 3 लापता हो गए।
سابق کپتان یونس خان دورہ نیوزی لینڈ کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر، قومی ٹیم کے ساتھ 2022 ورلڈ T20 تک فرائض انجام دیں گے۔ چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں یونس خان سے 2 سال کا معاہدہ خوش آئند ہے۔ یونس خان کہتے ہیں باصلاحیت کھلاڑیوں میں نکھار لانے کی کوشش کریں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹیم افیشلز کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ پاکستانی اسکواڈ 23 نومبر کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگا۔ اور کراچی میں 5ویں نیشنل روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ 30 کلومیٹر پر مشتمل پہلی ریس پاکستان کی حمیرہ نے جیت لی۔ ایونٹ میں 7 ٹیمز کے تقریباً 100 سائیکلسٹ حصہ لے رہے ہیں۔ ٹیم مقابلے کل سے شروع ہوں گے۔